Students, welcome back. In the first video of set theory, we have studied what is a set and how to represent it. If you have not seen the first part, link is given in the description box. You can see from there. In today's video, I am going to discuss what is an empty set, what is the empty set, finite and infinite sets, equal sets, subsets, intervals as a subset of R, power set and universal set. So let's start. What is the empty set? A set which does not contain any elements. A set which does not contain any elements is called empty set or null set or void set. The empty set is denoted by the symbol phi. Denoted by the symbol phi or simply like this. Okay, for example, let's take some example of empty set. Our first example, let A equal to x such that x belong to set of natural numbers and x lie between 1 and 2. So as there is no natural number between 1 and 2, the set A is empty set. क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, that's why the set A is empty set. The set A is the empty set. And the second one is, suppose let B equal to another set x such that x is an even prime number greater than 2. As there is no any prime number, there is कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो, 2 से तो ग्रेटर है बहुत सारे, बट 2 is the smallest even prime number. That's why B is also the empty set. The empty set. Similarly, let's take another example also. Let's equal to x such that x belongs to natural number n. And x satisfies this equation. ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे you will get x equal to 0 implies x equal to 1 by 2 which does not belong to n, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. That's why C is the also. Okay. Now finite and infinite sets. A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is infinite. So the number of elements means you have to take distinct number of elements. Suppose हमने लिया s equal to कोई एक set ले लिया जैसे like this. यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स को काउंट नहीं करना, सिर्फ हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करना है. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीन्स जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बेसिकली इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दिस इज इक्वल टू 4. नॉट 1 2 3 4 5 6, नॉट 6 नहीं होगा आपको. दिस इज नॉट इक्वल टू 6. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 4. आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करना है. ठीक है, देखिए रिपीटेशन मैटर नहीं करता सेट में, इसलिए हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करने हैं. फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के. तो हमने पहला एग्जांपल ले लिया, आप ले लो सेट W, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर. सिंपल, तो आपको पता है ये 12 मंथ्स होते हैं इसलिए फाइनाइट सेट होगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज G ले लिया हमने,
let G be the set of points. Let G be the set of points on a line. तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो इन दिस केस G इज infinite set. Take another example also. तो आपका set of natural numbers, set of integers, set of real numbers, all are infinite set. Equal sets. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, नाम से आपको लग रहा है इक्वल सेट्स. टू सेट्स A and B are equal if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A. It means they have the same, they have exactly the same elements. Both the sets have exactly the same elements. For example, हमने examples ले लिया, जैसे आप ले सकते हो. हमने पहला एक example लिया, हमने एक set लिया, set A, all prime numbers less than 6. तो बेसिकली A क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर लेते हैं. तो A आपको हो जाएगा 2, 3 एंड 5. और टेक अनदर सेट B. B हमने ले लिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. तो इसके भी सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं. तो B आपको बेसिकली क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2, 3 एंड 5. तो यहाँ पे देखा आपने A contains 2, 3, 5 and B contains 2, 3, 5. This means they have the same elements. This implies A equal to B, means they are equal sets. Okay. Our next topic is subsets. A set is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. If A is a subset of B, we write like this. ये सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे हम, to show that A is a subset of B. It means A is subset of B if A belonging to A implies that A belonging to B. This is the sign of implies that. ये साइन हम यूज करते हैं, implies that. If A is not a subset of B, we will write like this. अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि या तो B के भी सारे एलिमेंट्स A में हो या B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो A में ना हो. तो जब B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे तो इन दैट केस बोथ सेट विल बी इक्वल सेट्स. ठीक है, उस केस में क्या होंगे, दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे. अब सपोज मान लो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, उस केस में क्या होगा, A is said to be proper subset of B. उस केस में क्या होगा, A हमारा होगा proper subset of B and we will write like this. A is proper subset of B if A not equal to B. जब A B के बराबर नहीं होगा, मीन्स B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं होंगे. In that case we will say A is proper subset of B. तो यहाँ डेफिनेशन से दो चीजें आपको इजीली फॉलो कर देंगे. एक तो ये कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज एम्प्टी सेट. सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ट्रिवियल है आपका 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपको सबसेट्स फॉर्म कैसे करना है. जैसे सपोज आपको मान लो ये दिया हुआ है,
हमने लिया, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज आपको a इक्वल टू गिवन है 1 2 3, ठीक है, और हमें लिखना है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। उस केस में हम कैसे लिखेंगे ऑल सबसेट्स ऑफ ए? बहुत ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो हम क्या करना है, जस्ट सबसे पहला सेट आएगा हमारा 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। 5 और या 5 को ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। 5 और दिस दूसरा सेट होगा आपका, एक सेट होगा जिसमें सारे सिंगलटन्स एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद वो सारे सेट्स जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है। लास्ट में वो सारा एक 8 सेल, ठीक है। तो ये सारे ही सबसेट्स है ए के, ठीक है। और नेक्स्ट अब दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ आर लाइक नेचुरल नंबर, set of integers, set of rational numbers, all are subsets of R। ये सारे ही सबसेट हैं R के, ठीक है। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ R। तो अब इंटरवल्स कैसे डिफाइन करेंगे एज अ सबसेट ऑफ R? तो सपोज हमने लिया कोई भी दो नंबर लिया, ए, ये रियल नंबर लिया ए, रियल नंबर लाइन ए और बी 2 पॉइंट्स लिया where a is less than b. Then we define the open interval AB like this. All those y such that y lies between a and b, excluding a and b। यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ वो सारे एलिमेंट्स जो a और b के बीच में होंगे। a और b को छोड़कर, a और b को छोड़ के वो सारे एलिमेंट्स जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इससे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और जब हम ए और बी दोनों को इंक्लूड करते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स क्लोज इंटरवल ए बी। तो वो क्या हो जाएगा, वाई सच दैट ए लेसर इक्वल टू दिस लेसर इक्वल टू बी, मीन्स वहाँ पे ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है। We can also have intervals closed at one end and open at the other end. That is to say, ऐसे भी इंटरवल्स होते हैं जो एक साइड से क्लोज एंड अनदर साइड ओपन होते हैं। तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं लाइक दिस। ये इधर से ओपन है, यहाँ से ओपन है ये दोनों, और ये इंक्लूड है, मीन्स इसकी डेफिनेशन होगी वाई ऑल दोज पॉइंट्स वाई सच दैट वाई इसके बीच में लाई करेगा और ए इंक्लूडिंग ए, ठीक है, ए भी इसमें होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स ए और बी के बीच के इंक्लूडिंग बी ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे इंटरवल्स को कैसे लिखेंगे रियल नंबर्स, रियल लाइन पे, वो सारे होंगे लिखने के मेथड्स। अब आपको बेसिकली नोटेशंस क्या है, दिस प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डेजिग्नेटिंग द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक अनदर वे है लिखने का सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सपोज आपको गिवन है कि आपको वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल ये सेट दिया हुआ आपको, सपोज ये एग्जांपल गिवन है आपको, सपोज a इक्वल टू इज गिवन दैट x such that x belonging to R and x lies between -5 वो सारे एलिमेंट्स जो -5 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, इंक्लूडिंग 7 ऑल्सो। तो इस केस में आप इसे हम लिखेंगे सिंपल, लेफ्ट से ओपन -5 और राइट से क्लोज्ड, ओके। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। और नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए।
कोई भी सेट सपोज ए है, उसके जितने भी कलेक्शंस हैं, जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय दिस. सपोज आपको गिवन ए सेट ए इक्वल टू ए बी सी और आपको इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, सारे पावर सेट लिखने हैं, तो इसका पावर सेट होगा पी ए will be the collection of all subsets of A. all subsets of A. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला सेट आपका एम्प्टी सेट. ठीक है. पावर सेट the collection of all subset of A, all subsets of A is called the power set of A. It is denoted by P of A. Every element of P of A is a set. तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली P क्या है, कलेक्शन है ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A. तो P क्या है, कलेक्शन है ऑल सबसेट्स, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ PA इज अ सेट. जितने भी एलिमेंट्स होंगे P ऑफ A के, वो सारे क्या होंगे, सेट्स होंगे. जैसे हमने ले लिया सपोज एग्जांपल्स, हमने एक सेट लिया A इक्वल टू 1 and 2. ठीक है. तो हमने लिया यहाँ पे जिसके सारे पावर सेट्स जो होंगे ए के, वो होंगे सबसे पहला 5 एम्प्टी सेट. ठीक है. देन अनदर 1, देन 2. ठीक है. तो ये जो सारे एलिमेंट्स है पावर सेट के, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट्स हैं. तो एक दूसरे एग्जांपल्स भी लेते हैं. सपोज हमने दूसरा एग्जांपल लिया B इक्वल टू, हमने ले लिया 2 and 3. इस केस में पावर सेट ऑफ B दिस इज इक्वल टू सेट 5 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 and 2 3, then 1 3, 1 2 and 3. ठीक है. तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए पावर सेट ऑफ बी. तो आपने अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि सपोज यहाँ पे एन ऑफ क्या है आपका 2, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए इज 2. देन पावर सेट ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ elements in power set of A is 2 to the power 2, which is equal to 4. यहाँ पे क्या है, n of B, number of distinct elements in B is 3. Then number of elements in power set of B is equal to 2 to the power 3, which is 8. तो in general, if A is a finite set with whose number of elements in A is m, number of distinct elements in A is m, then number of elements in power set of A will be 2 to the power m. Okay. Basically अगर आपको ये given है कि number of elements in A is m, then the total number of elements in power set of A will be 2 to the power m. Okay, next है हमारा next topic, last topic, universal set. A set which contains all sets in a given context is known as universal set. तो universal set basically है क्या, वो सारे sets को contain which contains all sets in a given context. Given context में जो भी वो सारे sets जो भी set which contains all sets in a given context is known as universal set. It is denoted by U. Basically it is a superset of each of given sets. जो भी given sets given है उसका superset. तो कुछ आप मान लो जैसे एग्जांपल्स में हमने ले लिया कि आपको ये एग्जांपल्स गिवन है, A इक्वल टू एक सेट गिवन है 1 2 3. ठीक है. B एक अनदर सेट गिवन है 3 4 and 5. ठीक है. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं U इक्वल टू, एक तो आप ये ले सकते हो. ठीक है. नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम
नेचुरल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी सुपरसेट है ए और बी का। ठीक है, आर भी ले सकते हो आप यहाँ पे, तो बहुत सारे ले सकते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो जो भी गिवन सेट्स आपको गिवन है, ठीक है, तो उसके एक से ज़्यादा यूनिवर्सल सेट्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारे हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम्स और एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये सब करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो press the bell icon button so that you can get the notification of new video. Okay, see you, bye.